پیش خدمت ہے کہانی امبر ناگماریہ واپسی کا سفر قسط نمبر 125 چوتھا حصہ 99 سیڑھیوں کا راز۔ ناگ ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور اسے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا ہے یا وہ پیالے کے کنارے پر سے کسی بھونچال کی وجہ سے پھسل کر خون میں گر پڑا ہے۔ جب وہ سنبھلا تو خون میں ڈوب چکا تھا۔ یہ سب کچھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو گیا تھا۔ ناگ نے پیالے کے کنارے سے گرنے اور خون میں ڈوبنے تک ایک گہرا سانس لیا اور اپنی شکل بدلنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھوں پر خون کے چھینٹے پڑے اور وہ خون سے آدھے بھرے ہوئے پیالے میں ڈوب گیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ناگ خون کی سطح پر اوپر آ گیا اور اس نے گہرا سانس لیا کہ اپنی شکل بدل کر خون سے باہر نکل کر اڑ جائے، کیونکہ خون بھاری بھاری دلدلی تھا۔ لیکن ناگ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ناگ ایک نئے سانچے میں ڈھل چکا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ اس کے دماغ کی ساری کھڑکیاں بند ہو گئی تھی۔ صرف ایک کھڑکی کھلی رہ گئی تھی کہ وہ ناگ ہے اور 5000 سال سے زندہ ہے۔ وہ کون ہے، امبر اور ماریا کی شکلیں کیسی ہیں اور ان سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ ناگ یہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ سانپ کی شکل میں زندہ تھا اور اس کو یہی یقین ہو گیا تھا کہ وہ 5000 سال سے سانپ بن کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کو سانپ ہی کی طرح چیزوں کی شکلیں دھندلی دھندلی دکھائی دیتی تھیں اور آوازیں صرف اس وقت سنائی دیتی تھی جب وہ اپنی پتلی پتلی 2 شاخوں والی لال لال زبان باہر نکالتا تھا۔ بدرو لاش اندھیرے کونے سے نکل کر پیالے کی طرف آئی۔ اس کا آدھا چہرہ خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہڈیوں والا ہاتھ پیالے میں ڈال کر ناگ کو باہر نکالا۔ سانپ کے جسم پر سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ بدرو لاش اندھیرے کونے سے نکل کر پیالے کی طرف آئی۔ اس کا آدھا چہرہ خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہڈیوں والا ہاتھ پیالے میں ڈال کر ناگ کو باہر نکالا۔ سانپ کے جسم پر سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ بدرو لاش نے اس خون کو اپنی زبان سے چاٹ لیا اور پھر سانپ کو اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ ناگ اب ایک عام سانپ بن چکا تھا جو اس بدرو لاش کا غلام تھا اور اس کے حکم کے مطابق ہر کام کرتا تھا۔ وہ بدرو لاش کے زندہ جسم پر رینگنے لگا۔ یہاں سے رینگتا ہوا وہ لاش کے ہڈیوں کے ڈھانچے والے حصے کی طرف چلا گیا اور اس کی ران کی چوڑی ہڈی کے گرد لپٹ کر وہاں سے رینگتا ہوا اس کی پسلیوں میں آ گیا اور پھر اس کی گردن سے ہوتا ہوا اس کی آدھی ننگی کھوپڑی کی آنکھ میں سے باہر نکل آیا۔ بدرو لاش خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ سانپ اس کے سارے جسم پر ہر وقت چلتا پھرتا رہے تاکہ 1 مہینے کے بعد اس کا جسم ہڈیوں والے حصے پر پھر سے گوشت ابھر آئے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ بدرو لاش نے خوش ہو کر اپنے جبڑے کو پورا کھول دیا۔ اس کے حلق سے ایک عجیب سی چیخ نکلی۔ یہ خوشی کی چیخ تھی۔ اس نے خون سے بھرے ہوئے پیالے کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ سانپ بھی خوش ہو کر لاش کے جسم پر اس طرح ناچ رہا تھا، جھوم رہا تھا جیسے بین بجانے پر سانپ ناچا کرتے ہیں۔ بدرو لاش نے خونی پیالے میں سے خون کی چلی بھر کر اس کے 3 چھینٹے سامنے والی دیوار پر مارے۔ ایک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور سیاہ دیوار پر مقدس کھوپڑی ابھرنے لگی۔ جب کھوپڑی پوری طرح سے دیوار پر ابھر کر سامنے آ گئی تو بدرو لاش نے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا اور غرغراہٹ کی سی آواز میں کہا، مقدس دیوتا، میں نے سانپ کو فتح کر لیا ہے۔ یہ دیکھو، کیا یہ وہی سانپ ہے؟ کھوپڑی کی سرخ زبان باہر لٹک رہی تھی۔ زبان جھولنے لگی اور سسکار کی آواز کے ساتھ یہ الفاظ بدرو لاش کے کانوں سے ٹکرائے، اے مردوں کی دیوی، یہی وہ سانپ ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ اب اسے اپنی گردن کے ساتھ لٹکائے رکھا۔ یہ تمہارے سارے جسم پر رینگتا پھرے گا اور پھر 1 مہینہ گزر جانے پر تمہاری ہڈیوں پر تازہ گرم گرم گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر تم امر ہو جاؤ گی اور قیامت تک زندہ رہو گی۔ بدرو لاش فتح کے نشے میں جھوم رہی تھی۔ مقدس دیوتا کی کھوپڑی نے اپنی لال زبان اندر کھینچ لی اور کہا، لیکن تمہیں ایک بات کا خطرہ ہے۔ اچانک بدرو لاش ساکت ہو گئی۔ اس کا جبڑا ہلا۔ کس بات کا خطرہ، اے مقدس دیوتا؟ کھوپڑی کہنے لگی، اس سانپ کی ایک بہن بھی ہے۔ بدرو لاش نے پوچھا، کیا وہ بھی ناگن ہے؟ مقدس کھوپڑی نے کہا، نہیں، وہ ناگن ہوتی تو تم اسے آسانی سے قابو میں کر سکتی تھی۔ افسوس کہ وہ ناگن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی طاقتور عورت ہے جو اگر اس دیوار کے نیچے ہاتھ ڈالے تو اسے اٹھا کر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے۔ بدرو لاش بولی، میں بھی بڑی طاقت والی ہوں، میں اس کی طاقت کا مقابلہ کروں گی۔ مقدس کھوپڑی بولی، وہ تمہیں دکھائی دے گی تو تم مقابلہ کرو گی نا؟ کیا مطلب ہے مقدس دیوتا؟ کھوپڑی بولی، وہ عورت کسی کو نظر نہیں آتی، وہ غائب ہو چکی ہے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکتا۔ بس اسی عورت سے تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ناگ کی تلاش میں یہاں گئی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بدرو لاش پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی، کیا میں کسی طریقے سے اس پر فتح حاصل کر سکتی ہوں؟ مقدس کھوپڑی نے کہا، جو چیز دکھائی نہیں دیتی تم اس پر کیسے فتح حاصل کر سکتی ہو؟ تم اسے پتھر کی دیواروں میں قید نہیں کر سکتی کیونکہ وہ غیبی عورت دیوار میں سے گزر جاتی ہے۔ تم اسے آگ میں نہیں جلا سکتی کیونکہ اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ بدرو لاش نے کہا، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ میں خود اس سے دور رہوں اور اپنے سانپ کو لے کر قبرستان کے سب سے گہرے تہہ خانے میں تابوت میں جا کر 1 مہینے کے لیے بند ہو جاؤں۔ مقدس کھوپڑی نے کہا، وہ اس تہہ خانے میں بھی پہنچ جائے گی۔ تمہارے سانپ کی بو جو اس کی بھائی ہے اسے تمہارے تہہ خانے تک پہنچا دے گی۔ بدرو لاش گھبرا گئی تھی۔ اس نے کہا، کیا اس سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اے مقدس دیوتا؟ کھوپڑی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس کے منہ سے غراہٹ کی آواز نکلی۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا،
उस औरत से बचने का कि तुम इस मुल्क से निकल जाती, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकती। जो ही तुम इस कब्रिस्तान के शहर की हद से बाहर गई, तुम गल सड़कर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाओगी। बदरू लाश की खुशियों पर जैसे पानी फिर गया था। उसकी आंख से गुस्से के मारे शोले निकल रहे थे। उसने कहा, उस गैबी औरत के आने की क्या निशानी होगी? खोपड़ी ने कहा, वो जब इस कब्रिस्तान की दुनिया में दाखिल होगी तो अंबर की आंखों का रंग सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि वो भी उस गैबी औरत का एक भाई है और इस गैबी औरत को नाग के साथ साथ अंबर की भी तलाश है। अचानक बदरू लाश ने चिंगाड़ मारी और वो जमीन से 1 फुट ऊपर को उछल पड़ी। उसकी गर्दन से लिपटा हुआ नाग सहम गया। बदरू लाश ने चीख कर कहा, ऐ मुकद्दस देवता की खोपड़ी, मुझे तुम्हारी शैतानी ताकत की कसम है, मैं उस गैबी औरत को ढूंढ कर उसे अपने जादू से जलाकर भस्म कर दूंगी। मैंने क़यामत तक जिंदा रहने के खजाने को पा लिया है। अब अगर किसी ने मेरे खजाने पर डाका डालने की कोशिश की तो मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगी। मेरे शहर के मुर्दे उस पर हमला कर देंगे और उसकी तिक्का बोटी कर देंगे। मुकद्दस खोपड़ी दीवार से गायब हो गई। बदरू लाश अकेली रह गई थी। उसने प्याले के खून में हाथ डालकर अपने हड्डियों वाले चेहरे पर मला और अलग से डरावनी चीख की आवाज निकालकर कहा, मैं उस गैबी औरत के टुकड़े उड़ा दूंगी। फिर उसने नाग को दोनों हाथों से थामकर अपने मुंह के आगे किया। नाग ने अपनी 2 शाखा जुबान बाहर निकाली तो बदरू लाश ने उस जुबान को चूम लिया और एक चुड़ैलों जैसा कहका लगाकर गुंबद वाले तहखाने से बाहर निकल गई। उसने फैसला कर लिया था कि वो गैबी औरत को तहस नहस कर देगी। सारी रात उसने अपने कब्रिस्तान के नीचे मुर्दों के शहर के उजाड़ मकबरों वाले गली कूचों में फिरकर गुजार दी। सुबह तहखाने में आकर सबसे पहले वो चबूतरे के पास गई और उसने अंबर की गर्दन के ऊपर टिकी हुई सिरी को देखा कि कहीं उसकी आंखों का रंग सुर्ख तो नहीं है। अंबर की आंखों का रंग सफेद और स्याह था। इसका मतलब था कि अभी तक गैबी रूह उसकी मुर्दों की दुनिया के कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हुई थी। बदरू यहां से निकलकर वापस मुर्दों के शहर में आ गई। यहाँ दिन के वक्त भी रात ही की तरह अंधेरा छाया हुआ था। कब्र जैसे गोल गुंबदों वाले घरों के बाहर कहीं कहीं दिया चल रहा था और सूखे फूल पड़े थे। हर घर के बाहर कब्र की तरह का पत्थर का कदबा लगा था जिस पर मुर्दे का नाम लिखा था। बदरू लाश को आता देखकर कफन पोश मुर्दे अपने अपने घरों से निकलकर दरवाजों पर हाथ बांधकर खड़े हो गए। उनकी खोपड़ियां कफन से बाहर निकली हुई थी। बदरू लाश उनके दरमियान से गुजरती चली गई। वो सख्त परेशानी में थी और उसके नथनों से फुनकारें निकल रही थी। मुर्दों ने पहली बार बदरू लाश की गर्दन पर एक काला सांप देखा जो उसके सारे जिस्म पर रेंगता हुआ वापस उसकी गर्दन में आ जाता था। बदरू लाश गुस्से की हालत में थी। मुर्दे सर झुकाए सहमे हुए खड़े थे। बदरू लाश उनके दरमियान से फुनकारती हुई एक ऐसे मकबरे में आ गई जिसकी सीढ़ियां मुर्दों की खोपड़ियों से बनाई गई थी। मकबरे के अंदर अंधेरा था लेकिन लाश उस अंधेरे में सब कुछ देख रही थी। मकबरे में एक कब्र बनी हुई थी। लाश ने कब्र के पास जाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, ऐ कमबावली, मेरी मदद कर। एक गैबी औरत तुम्हारे मुर्दों के शहर की सल्तनत को तबाह बर्बाद करने आ रही है। मुकद्दस देवता बेबस है, तू मेरी मदद कर। कब्र में से गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसके अंदर से एक रूह धुएं के सफेद सतून की तरह बाहर निकल आई और कब्र के ऊपर खड़ी हो गई। उसकी खोपड़ी पर रखा हुआ बंदर के सर वाला ताज साफ नजर आ रहा था। ये कम्पावली की रूह थी जो जमीन के अंदर मरी हुई औरतों की लाशों की हिफाजत करती थी। कम्पावली की रूह ने एक हाथ ऊपर उठाया और कहा, उस औरत का नाम मारिया है। वो 5000 साल से जिंदा है और अपने भाइयों नाग और अंबर के साथ तारीख की वापसी का सफर तय कर रही है। नाग और अंबर को तूने अपनी कैद में डाल रखा है लेकिन मारिया पर तेरा जादू नहीं चल सकेगा। मैं खुद 3000 सालों से इस कब्र के अंदर लेटी हूँ। मैंने मारिया को फिरौन बादशाह के ज़माने में दरियाए नील के किनारे पर भी देखा है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में गरीब लोगों की मदद करते भी देखा है। मैंने उसे एक मुल्क से दूसरे मुल्कों तक समंदरों के ऊपर उड़ते भी देखा है और खलीफा हारून रशीद के शाही बाग में शहजादियों के पास बैठे भी देखा है। उसने एक सच्ची ईसाई औरत की तरह हमेशा गरीबों और बीमारों की खिदमत की है और मजलूम इंसानों की हिमायत में जालिम बादशाहों से जंग की है। ऐसी औरत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके दिल में अपने भाइयों के सच्चे और पाकीज़ा प्यार की शम्मा रोशन है। उस मासूम प्यार ने मारिया के अंदर एक ज़बरदस्त ताकत भर दी है। कम्पावली की तकरीर सुनकर बदरू लाश का चेहरा एक बार फिर खौफ से जर्द हो गया क्योंकि कम्पावली से उसे बड़ी उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करेगी। अब वो भी उसे मारिया की ताकत से डरा रही थी मगर बदरू हार मानने वाली नहीं थी। फिर इस हार में उसकी अपनी मौत छुपी हुई थी। अगर मारिया उसे शिकस्त देकर अंबर और नाग को रिहा करवा लेती है तो बदरू लाश का 1 महीने के बाद अमर नहीं हो सकेगी बल्कि उल्टा कुछ देर बाद अपने आप गल सड़कर मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह थी कि बदरू लाश ने मुर्दा औरतों की लाशों की हिफाजत करने वाली कम्पावली की रूह की बात पर भी कान न धरा। वो गजबनाक होकर बोली, ऐ कम्पावली, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, तूने भी मुझे जवाब दे दिया। कम्पावली की रूह ने कहा, मारिया के खिलाफ कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यह है कि तुम भी मरने के लिए तैयारी शुरू कर दो। बदरू लाश ने एक भयानक चीख मारी। उसकी आंख से शोला निकलकर कम्पावली की कब्र से टकराकर अंधेरे में चिंगारियां बनकर गायब हो गया। मैं नहीं मर सकती, मैं गैर फानी हूँ, अमर हूँ, मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। मैं मारिया को अपनी जबरदस्त ताकत से कुचल कर रख दूंगी। ये कहा और बदरू लाश फुनकारती हुई मकबरे से निकल गई। नाग उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था।
اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہاں کیا کیا باتیں ہو رہی تھی. اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ ایک سانپ ہے جو ہزاروں برس سے زندہ چلا رہا ہے. امبر اور ماریا کون تھے اسے کچھ معلوم نہیں تھا. پیالے کے خون میں غوطہ لگانے کے بعد ناگ کی یادداشت بالکل کھو گئی تھی. بدرو لاش غصے میں آگ کا شعلہ بنی ہوئی تھی. اسے اپنی موت نظر آنے لگی تھی. وہ مرنا نہیں چاہتی تھی. اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دے گی مگر خود ہر حالت میں زندہ رہے گی. صرف 1 مہینے کی اسے مہلت چاہیے تھی. وہ کسی طرح سے 1 مہینہ گزارنا چاہتی تھی. یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ قبرستان کی دنیا سے باہر نہیں جا سکتی تھی. اس کے باوجود وہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھی. اس نے قبرستان کے اوپر چاروں کونوں پر ایسے مردوں کا پہرا لگا دیا جن کے منہ سے جہنم کی آگ کے شعلے نکلتے تھے. پھر وہ 99 پر اسرار سیڑھیوں پر آ گئی. اس نے 99 سیڑھی کا تختہ ہٹا کر اس کے نیچے جو تابوت پڑا تھا اس کے اوپر ایک دوزخی کھوپڑی لا کر رکھ دی. یہ کھوپڑی کسی انسان کے سیڑھی پر قدم رکھنے سے آگ کا فوارہ اگلتی تھی جس طرح سے جوالا مکھی پہاڑ گرم دہکتا ہوا لاوا اگلتا ہے. بدرو لاش اندر سے بے چین بھی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی. وہ بار بار جا کر بڑے تہخانے میں امبر کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتی کیونکہ مقدس کھوپڑی نے خبردار کیا تھا کہ جس وقت غیبی عورت اس کے قبرستان میں داخل ہوئی امبر کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو جائے گا. امبر بھی بدرو لاش کو دیکھتا اور دل میں سوچتا کہ نہ جانے یہ بار بار اس کے پاس آ کر اسے غور سے کیوں دیکھتی ہے. اسے رہ کر ناگ اور ماریا کا خیال آتا کہ نہ جانے وہ دونوں کہاں ہیں اور اس قبرستان کے نیچے مردوں کے شہر میں کبھی آئیں گے بھی کہ نہیں. بدرو لاش کو ہم مردوں کی دنیا میں پریشان چھوڑ کر واپس ماریا کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کیونکہ ناگ اور امبر کی زندگی کا صرف 1 مہینہ باقی تھا. اگر ماریا اس 1 مہینے میں ان کی مدد کو قبرستان کے نیچے مردوں کی دنیا میں نہیں پہنچتی تو بدرو لاش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ناگ، امبر اور عبداللہ اور اس کی بیوی زبیدہ کی لاشیں زمین پر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی. ماریا کو کچھ خبر نہیں تھی کہ حالات کتنے خطرناک ہو گئے ہیں. وہ اپنی اس سہیلی الزبتھ کے ساتھ لندن کے کنجان علاقے میں رہ رہی تھی. وہ روز دن کو نکلتی اور شہر میں جا کر امبر اور ناگ کو تلاش کرتی اور شام کو ناکام واپس آ جاتی. الزبتھ اس کے کمرے میں 1-2 بار آ کر ماریا سے ملاقات کر جاتی تھی. گھر میں الزبتھ کی آنٹی کو ماریا کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. جب ماریا کو الزبتھ کے گھر میں رہتے ہوئے 20-25 دن ہو گئے تو ایک روز اس نے الزبتھ سے یہ کہہ کر اجازت لی کہ وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنے بھائیوں کو تلاش کرے گی. الزبتھ کو ماریا سے بڑا پیار ہو گیا تھا. وہ اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی لیکن یہ ماریا کے بھائیوں کا سوال تھا. اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماریا کو جانے کی اجازت دے دی. ماریا لندن شہر سے نکل کر ایک گھوڑا گاڑی میں سوار ہوئی اور انگلستان کے آخری سمندری شہر میں آ گئی. یہاں سے کشتیاں کھاڑی پار کر کے فرانس کو جاتی تھی. ماریا فرانس میں جا کر ناگ امبر کو تلاش کرنا چاہتی تھی. ایک کشتی میں سوار ہو کر ماریا نے سمندر کی کھاڑی پار کی اور وہاں سے ایک گھوڑا گاڑی کے ذریعے فرانس کے شہر پیرس میں آ گئی. نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ناگ اور امبر سے ملاقات اسی شہر میں ہوگی. ماریا نے شہر میں آتے ہی گشت لگانی شروع کر دی کہ شاید کہیں امبر ناگ کی صورت نظر آ جائے. سارا دن وہ پھرتی رہی. وہ قلعے کی طرف بھی گئی. قلعے کے اندر بادشاہ کا محل تھا. محل کو اس نے دور ہی سے دیکھا اور واپس دریا والی سرائے میں آ کر ایک خالی کوٹھی میں جا کر لیٹ گئی. پیرس میں سخت سردی تھی اور تیز برفیلی ہوائیں چل رہی تھیں. اس رات قبرستان کے نیچے مردوں کے شہر میں بدرو لاش بڑے تہخانے میں امبر کی آنکھوں کو دیکھنے گئی تو ایک دم سے چونک اٹھی. امبر کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی کی ایک لہر آئی ہوئی تھی. تو کیا ماریا اس شہر کے آس پاس پہنچ چکی ہے؟ بدرو لاش نے سوچا. وہ پریشان ہو کر تہخانے سے باہر نکلی اور مردوں کے شہر میں آ گئی. یہاں ایک اندھا کنواں تھا. بدرو لاش اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. اس نے سانپ کو گردن سے اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور چلا کر غصے میں کہا، اے میرے دوست عنکبوت، کیا تو میری مدد کو نہیں آئے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ کنویں کے اندر سے ایک ریچھ جتنا بڑا مکڑا باہر نکلا. اس کے منہ سے باریک ریشمی جالے کی تاریں نکل رہی تھی. بدرو لاش نے کہا، غیبی عورت شہر پیرس میں پہنچ چکی ہے. تم جانتے ہو وہ میری موت ہے مگر وہ کسی کو نظر نہیں آتی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اگر اس عورت پر اپنے جالے کی تاریں پھینکو تو وہ نظر آنے لگے؟ مکڑا عنکبوت بولا، ایسا ہو سکتا ہے، میں کوشش کروں گا. اگر غیبی عورت پر میرا جالا جا کر چمٹ گیا تو میں اسے اپنے جالے کی تاروں میں لپیٹ کر اسے چٹ کر کے ختم کر دوں گا. بدرو لاش کی آنکھ میں امید کی کرن چمکی. اس نے جھک کر مکڑے کے سر کو اپنے آدھے ہونٹ سے چوم لیا اور کہا، تو پھر یہاں بیٹھ کر قبرستان میں اس کا انتظار کرنے کے بجائے ابھی شہر جاؤ اور غیبی عورت کو تلاش کر کے اسے مردوں کے شہر میں آنے سے پہلے پہلے ختم کر دو. جو حکم. یہ کہہ کر مکڑا غائب ہو گیا. اس کے غائب ہوتے ہی وہ روح لاش نے پہلی بار کچھ اطمینان محسوس کیا اور اپنی گردن سے لیٹے ناگ کو پیار کرتی واپس اپنے تہخانے میں چلی گئی. وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بڑے تہخانے میں جا کر امبر کی آنکھوں میں جھانک لیتی کہ کہیں اس کی آنکھیں سرخ تو نہیں ہو گئی. لیکن نہیں، ابھی اس کی آنکھیں سرخ نہیں ہوئی تھی، صرف ہلکی ہلکی لالی ابھر آئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ غیبی عورت اس علاقے میں پہنچ چکی ہے. مکڑا قبرستان کے نیچے مردوں کے شہر سے غائب ہو کر پیرس کے دریا کے کنارے جھاڑیوں میں شہر کی پرانی دیوار کے پاس ظاہر ہو گیا. یہ مکڑا اس وقت زندہ انسان کی شکل میں نہیں تھا بلکہ ایک مردہ انسان کے ڈھانچے کی شکل میں تھا، جس کے چہرے پر اس زمانے کے بانکوں کے رواج کے مطابق سیاہ نقاب پڑا تھا. سر پر راج ہنس کے پروں والا ہیٹ تھا. جسم پر تنگ سیاہ لباس تھا.
उस लिबास में उसके जिस्म की हड्डियों का ढांचा छुप गया था। उसके सर की खोपड़ी हैट में और चेहरे की हड्डियां नकाब के पीछे छुपी हुई थी। उसने कंधों पर स्याह लिबादा डाल रखा था। देखने पर किसी को यकीन नहीं आ सकता था कि यह हड्डियों का इंसानी ढांचा है। नकाब में सिर्फ उसकी आंखों में वो 2 सुराख साफ दिखाई दे रहे थे, जिनको मकड़ा इस तरह छुपा रहा था कि वो बार बार अपना स्याह रुमाल वाला हाथ अपनी आंखों पर रख लेता था। मकड़ा शहर की तरफ रवाना हो गया। वो लोगों से दूर रहकर चल रहा था। आखिर वो शहर की पुरानी दीवार के पास आकर एक जगह ऊंची झाड़ियों में छुप गया और रात का अंधेरा फैलने का इंतजार करने लगा। जब रात के अंधेरे ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया तो मकड़ा झाड़ियों से निकलकर शहर की तरफ आया। गैबी औरत की तलाश बहुत मुश्किल थी, मगर मकड़े के पास सिर्फ एक हथियार था, यानी वो जाला जिसके तार उसके मुंह से निकलते थे। इंसानी मकड़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने मुंह से जाले के तार निकालकर इधर उधर फेंकता। उसे यकीन था कि अगर कोई गैबी औरत उसके आसपास हुई तो तार उसके जिस्म से लिपटकर उसे जाहिर कर देंगे। इंसानी मकड़े ने सोचा कि गैबी औरत जरूर किसी न किसी सराय में उतरी होगी जहां वह सुकून के साथ रात बसर कर सकती है। इंसानी मकड़ा सराय में आ गया। सराय के बाहर चिराग जल रहा था। मकड़ा आंखों पर हाथ रखे सराय में दाखिल हो गया। किसी ने महसूस न किया कि ये एक हड्डियों का ढांचा है, इंसान नहीं है। इंसानी मकड़ा किसी खाली कोठली की तलाश में था, क्योंकि गैबी औरत किसी खाली कोठली को ही अपना ठिकाना बना सकती थी। उसे एक खाली कोठली दिखाई दी। वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने अपने मुंह से जाले के तार निकालकर पूरी ताकत से एक जाल की तरह इर्द गिर्द फेंके। तार किसी औरत के जिस्म से टकराने के बजाय जमीन पर गिर पड़े। गैबी औरत यहां नहीं थी। मकड़ा बाहर निकलने लगा तो सामने से सराय का मालिक आ गया। सराय के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानी मकड़े ने एक बारीक मनमनी सी आवाज में कहा, मैं एक दोस्त की तलाश में हूं। सराय के मालिक ने झुककर इंसानी मकड़े को देखा और कहा, तुमने आंखों पर हाथ क्यों रखा हुआ है? इंसानी मकड़ा बाहर निकलने लगा तो सराय के मालिक ने उसे धक्का दे दिया। धक्का देने से मकड़े के मुर्दा ढांचे की हड्डियां खड़खड़ाई। सराय का मालिक हैरानी से उसे तकने लगा। तुम कौन हो तुम? इंसानी मकड़े ने अपने चेहरे पर से नकाब उलट दिया। सराय के मालिक ने जो अपने सामने इंसानी खोपड़ी देखी तो चीख मारकर बाहर को भागा। इंसानी मकड़ा कोठली की खिड़की फांद कर दूसरी जानिब की एक अंधेरी गली में निकल गया। उधर बदरू लाश कब्रिस्तान के नीचे परेशान थी। इंसानी मकड़े को शहर में गैबी औरत की तलाश में गए 3 दिन हो गए थे। वो वापस नहीं आया था। बदरू लाश की मोहलत के बाकी 6 रोज रह गए थे। अगर 6 दिनों तक मारिया कब्रिस्तान में ना आई और बदरू लाश की गर्दन में लटकता सांप उसी तरह उसके जिस्म पर फिरता रहा तो वो गैर फानी हो जाएगी, अमर हो जाएगी और फिर दुनिया की कोई ताकत मारिया समेत उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगी। बदरू लाश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो यही चाहती थी कि किसी तरह ये 6 रोज भी गैबी औरत उसके कब्रिस्तान से दूर रहे। वो दिन में कई बार बड़े तहखाने में जाकर अंबर की आंखों में झांक कर देखती थी। अंबर की आंखों में सुर्खी अभी तक बहुत हल्की थी, जिसका मतलब था कि गैबी औरत अभी कब्रिस्तान से बहुत दूर शहर में किसी जगह पर है। बदरू लाश को मकड़े का जबरदस्त इंतजार था कि वो आकर उसे गैबी औरत को हलाक कर देने की खुशखबरी सुनाए। इंसानी मकड़ा दिन को कोनों खुदरों और दरिया किनारे की झाड़ियों और जंगल में छुपा रहता। रात का अंधेरा होते ही वो शहर में आ जाता और जगह जगह गैबी औरत को ढूंढता फिरता। एक रात उसने शहर के कहवा खाने में लोगों को कहते सुना कि शहर की दरिया वाली दीवार के एक सराय में कोई भूत आ गया है जो रात को खिड़कियां दरवाजे पीटता है। इंसानी मकड़े के कान खड़े हो गए। हो ना हो ये वही गैबी औरत होगी। वो सराय की तरफ चल पड़ा। ये सराय शहर की पुरानी दीवार के साए में दरिया के किनारे पर थी। यहाँ बहुत कम मुसाफिर ठहरे हुए थे। ऊपर वाली कोठली के बारे में वहाँ मशहूर था कि दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और खिड़कियाँ रात को अपने आप खुल जाती हैं और किसी के पाँव की चाप सुनाई देती है, जिसकी वजह से ऊपर वाली कोठली में कोई नहीं जाता था। इंसानी मकड़ा सराय से बाहर आकर एक जगह छुप गया। जब रात गहरी और खामोश हो गई तो वह सराय की पिछली दीवार पर दरख्त की शाखों को पकड़कर चढ़ गया। ऊपर वाली कोठली की खिड़की बंद थी। इंसानी मकड़ा खिड़की के साथ जाकर लग गया। उस वक्त खिड़की के अंदर मारिया लकड़ी के पलंग पर लेटी अंबर और नाक के बारे में सोच रही थी। उसका मुंह दीवार की तरफ था और पीठ खिड़की की तरफ थी। इंसानी मकड़े ने खिड़की के टूटे हुए पट में से अंदर झांक कर देखा। कोठली खाली पड़ी थी। उसने अपना मुंह अंदर करके पूरी ताकत से अपने जिस्म से सफेद तार निकालकर उनको अंदर फेंकना शुरू कर दिया। सारी कोठली में मकड़े के जाले ने तारें फैला दी। मारिया ने महसूस किया कि उसके जिस्म में से कोई श्वार सी निकलकर दीवार की तरफ जाती है और फिर वापस आ जाती है। उसने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। सारी कोठली में मकड़ी का जाला फैला हुआ था। वो पलंग पर से उठ बैठी। 1 मिनट पहले तो यहाँ कोई जाला नहीं था। ये इतनी बड़ी मकड़ी एकदम कहाँ से आ गई जिसने सारी कोठली में जाला फैला दिया? वो उठकर जालों के बादल में से गुजरकर खिड़की की तरफ आ गई। इंसानी मकड़ा मारिया को नहीं देख सकता था। वो खिड़की के बाहर निकली हुई कार्नस पर खड़ा मुंह अंदर किए मकड़ी के खतरनाक जाले की पिचकारियां मार रहा था। मारिया की नजर खिड़की के टूटे हुए पट पर गई तो वहां उसे एक नकाबपोश चेहरा नजर आया, जिसके सर पर राज हंस के परों वाला हैट था। जाला उसके मुंह से तारों की शक्ल में निकल कर कोठली में फैल रहा था। मारिया ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वो खिड़की के पास आ गई।
उसने खिड़की के टूटे हुए पट में से हाथ बाहर निकालकर इंसानी मकड़े के मुंह पर से नकाब खींच लिया। इंसानी मकड़े के साथ ही मारिया की भी चीख निकल गई। उसके सामने एक खोपड़ी थी जिसकी आंखों में सुराख थे। इंसानी मकड़ा समझ गया कि गैबी औरत का सामना हो गया है। उसने बड़ी तेजी से मारिया की तरफ जाले के तारों की बारिश कर दी, मगर कोई भी तार मारिया के जिस्म पर नहीं अटक सकता था। तार नीचे गिरते जा रहे थे। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि यह इंसानी ढांचा उस पर हमला करने कहां से आ गया है। मारिया ने इंसानी ढांचे को अंदर खींच लिया। ढांचा कोठली में गिर पड़ा। वो समझ गया कि यह गैबी औरत पर उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ और अब उसकी जान खतरे में है। वो वहां से भागने की फिक्र में था कि मारिया ने उसे फर्श से उठाया और सामने वाली दीवार से दे मारा। इंसानी ढांचे की खोपड़ी अलग होकर गिर पड़ी। मारिया ने खोपड़ी को उठाया तो वो एक बड़ा सा मकड़ा बन गई। मारिया ने जल्दी से उसे नीचे फेंक दिया। मकड़ा शदीद जख्मी था। उसके सर में से स्याह रंग का खून बह रहा था और आधी खोपड़ी कुचली हुई थी। मारिया ने झुककर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मकड़े ने आहिस्ता से कहा, कब्रिस्तान, भाग जाओ, भाग जाओ। और उसके साथ ही मकड़े ने दम तोड़ दिया। मारिया सोचने लगी कि मकड़ा इंसानी ढांचे की शक्ल में कैसे आ गया और फिर मकड़ा कैसे बन गया। क्या ये कोई जादूगर था? वो उस पर जाला फेंककर उसे हलाक क्यों करना चाहता था? उसे किसने भेजा था? ये क्या राज है? उसे मकड़े के आखिरी अल्फाज याद आ गए, कब्रिस्तान, भाग जाओ। क्या किसी कब्रिस्तान में कोई उसका दुश्मन छुपा हुआ है? शहर में कितने ही कब्रिस्तान थे, आखिर वो खास कब्रिस्तान कौन सा है? मारिया कुछ समझ ना सकी कि यह मुहिम्मा क्या है। उसने कोठली में से मकड़े की लाश उठाकर खिड़की में से बाहर फेंक दी, जाला साफ किया और पलंग पर लेटकर एक बार फिर अंबर और नाग के बारे में गौर करने लगी। वो जितना गौर करती, अंबर नाग उसे अपने आप से और ज्यादा दूर दिखाई देते। उसका दिमाग सोचते सोचते थक गया तो उठकर नीचे आ गई कि किसी तरीके से कॉफी का एक प्याला पीकर ताज़ा दम हो। रात बड़ी सर्द थी। 11 बजने वाले थे। सराय का मालिक चूल्हों के पास बैठा कहवा बना रहा था। उसके पास 2 आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक पक्की उम्र का मोटा ताज़ा मजदूर सा लगता था। उसके चेहरे पर खौफ का असर था। ऐसा मालूम होता था कि वो कोई अनोखी पुरस्कार बात सुना रहा था। सराय के मालिक ने उसके आगे कहवे का प्याला रखकर कहा, गोरियो, लो कहवा पियो और फिर जरा अपने होश में आकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ है। दूसरा आदमी बोला, गोरियो भाई, तुम्हें कब्रें खोदते खोदते 50 बरस हो गए हैं, फिर भी तुम कब्रिस्तान का नाम लेते हुए घबरा रहे हो। मालूम हुआ कि ये गोरियो कोई गोरकन है और उन्हें पहले बयान कर चुका है कि वो किसी कब्रिस्तान से भागकर आ रहा है। गोरकन ने कहवे का गर्म घूंट पिया और कहा, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारा मुझसे ज्यादा बुरा हाल होता, बल्कि तुम कब्रिस्तान से जिंदा बचकर नहीं आ सकते थे। सराय के मालिक ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, आखिर कुछ बताओ भी कि क्या बात हुई है। गोरकन ने कहवे का एक और घूंट पिया और प्याली नीचे रख दी। फिर उसने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और बोला, मैं गोरकन हूँ। मेरा काम कब्रें खोद कर मुर्दों को दफन करना है। मैं 50 बरस से कब्रें खोद रहा हूँ। मैंने अंधेरी रातों में कब्रें खोदी हैं और कब्रों में उतरा हूँ। मुझे कभी खौफ महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। और अगर कोई मुझे 1 लाख रुपया भी दे तो मैं उस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं जाऊंगा। दूसरा आदमी बोला, भाई आखिर ये तो बताओ कि तुमने उस कब्रिस्तान में क्या देखा। गोरकन कहने लगा, आज शाम का जिक्र है। मैं शहर के बड़े कब्रिस्तान में अपनी कुटिया में बैठा खाना तैयार कर रहा था कि 2 शरीफ आदमी एक ताबूत में लाश लेकर मेरे पास आए। ताबूत एक छकड़े पर रखा हुआ था जिसके आगे एक घोड़ा जुता था। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें अपना मुर्दा दफन करवाना था तो उन्होंने पहले इतला क्यों नहीं की ताकि वो कब्र खोद रखता। उनमें से एक आदमी ने मेरे हाथ पर 50 फ्रांक के सिक्के रखकर कहा कि इस ताबूत में हमारी नानी की लाश है। हम इस लाश को शहर के बाहर किले के पीछे जो कब्रिस्तान है वहाँ दफन करवाना चाहते हैं। मैंने कहा कि उस कब्रिस्तान में तो पिछले 100 बरस से कोई नया मुर्दा दफन नहीं हुआ। आखिर उन्होंने इस कब्रिस्तान को क्यों पसंद किया है। दूसरा आदमी बोला कि हमारा ख़ानदान बड़ा पुराना है और हमारा ताल्लुक नारमंडी के नवाबों से है, मगर हम लोग गरीब हो गए हैं। हमारी नानी ने वसीयत की थी कि उसे मरने के बाद किले के पिछवाड़े वाले पुराने शाही कब्रिस्तान में दफन किया जाए, इसलिए हम ताबूत लेकर तुम्हारे पास आए हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि लाश को अपने सामने दफन करवा सकें, मगर हमें तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। तुम्हारी ईमानदारी और नेकी की शहर में बड़ी चर्चा है। हम तुम्हें 100 फ्रांक देते हैं। तुम बराए मेहरबानी हमारी नानी की लाश को किले वाले शाही कब्रिस्तान में दफन कर दो। हमें उम्मीद है कि तुम हमें नाउमीद नहीं करोगे। गोरकन एक पल के लिए चुप हो गया। सराय का मालिक और दूसरा आदमी बड़े गौर से उसकी पुरस्कार कहानी सुन रहे थे। मारिया भी वहां एक तरफ बैठी गोरकन की अनोखी दास्तान दिलचस्पी से सुन रही थी। गोरकन ने कहवे का एक घूंट पीकर कहा, 100 फ्रांक अच्छी खासी रकम होती है। मैंने हामी भर ली। आपको मालूम है कि मैं एक ईमानदार शख्स हूँ। जिस बात का वादा कर लूँ उसे ज़रूर पूरा करता हूँ। बस मैंने उन्हें कह दिया कि मैं लाश को पुराने शाही कब्रिस्तान में ही दफन कर दूंगा। वो दोनों मेरा शुक्रिया अदा करके ताबूत मेरी कुटिया में रखकर चले गए। जब मैं खाना पकाकर खा चुका तो मैंने सोचा कि क्यों ना रात को ही लाश दफन कराऊं। अगले रोज़ मुझे अपने कब्रिस्तान में बड़ा काम था। 3-4 कब्रों को पक्का करना था और रात को कब्रिस्तान से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मैं खाना खाने के बाद उठा, अपना छकड़ा बाहर निकाला
اس میں کدال اور پھاوڑا رکھا، تابوت کو اٹھا کر چھکڑے میں لادا اور اپنا گرم کوٹ اور یہی اونی ٹوپی پہن کر چھکڑا لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ گورکن نے اپنی اونی ٹوپی اتار کر اسے ہاتھ میں مسلا، پھر اسے اپنے سر پر رکھ کر کانوں تک کھینچا اور صلیب کا نشان بنا کر کہنے لگا، یہ جو قلعے کے پیچھے قبرستان ہے یہ بہت ہی پرانا قبرستان ہے، اس کی تاریخ 300-400 سال پرانی ہے۔ کہتے ہیں یہاں فرانس کے پہلے شاہی خاندان کی قبریں بھی ابھی تک موجود ہیں۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ اس قبرستان میں رات کو روحیں پھرتی ہیں۔ ہم گورکن اگر اس طرح کی باتوں سے ڈرنے لگے تو پھر اپنا دھندا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں بے خوف ہو کر قلعے والے شاہی قبرستان میں چھکڑا لے کر داخل ہو گیا۔ تابوت میرے چھکڑے پر لدا ہوا تھا۔ میں ایک مدت کے بعد اس قبرستان میں داخل ہو رہا تھا، مگر میرے لیے سارے قبرستان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، قبر، مردہ اور قبرستان۔ ان کو دیکھ کر مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ میں نے چھکڑا قبروں کے بیچ میں جاتے راستے پر ڈال دیا۔ میرا خیال تھا کہ ان شریف خاندانی لوگوں کی نانی کے تابوت کو کسی اچھی جگہ جا کر دفن کروں گا۔ رات بڑی پراسرار اور اندھیری تھی۔ مجھے اس قبرستان میں 2 باتیں بڑی عجیب لگیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس قبرستان کے جتنے درخت تھے ان میں سے کسی پر ایک بھی پتا نہیں لگا تھا، اور وہ سارے کے سارے کچھ اس طرح ٹیڑھے میڑھے ہو گئے کہ ان کے کانٹوں کی طرح کی شاخیں قبروں کے اوپر بچھی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ قبرستان میں ایک سفید دھند کا بادل چھت کی طرح قبروں کے اوپر تنا ہوا تھا۔ قبرستان میں دھند ہر موسم میں ہوا کرتی ہے، مگر دھند کی ایسی چھت بنی ہوئی میں نے آج تک کسی قبرستان میں نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی میں نے کوئی خیال نہ کیا اور چھکڑا لیے آگے بڑھتا گیا۔ چھکڑے کے پہیے چوں چوں کر رہے تھے۔ یہ آواز قبرستان کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ میرا گھوڑا سر جھکائے قدم قدم آگے چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ گھوڑا آگے چلتے ہوئے کچھ جھجک رہا ہے۔ میں چھکڑے سے نیچے اتر آیا، گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے آگے چلانے کی کوشش کی تو وہ رک گیا۔ میں نے اسے آگے کو کھینچنا چاہا تو وہ بڑے زور سے ہنہنایا اور پیچھے کو ہٹ گیا۔ اس قسم کی حرکت گھوڑا اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی شے سے ڈر جائے۔ میں نے قبرستان میں ایک نگاہ ڈالی، وہاں سوائے قبروں، سیاہ درختوں اور جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ وہیں کسی جگہ قبر کھود کر لاش کو دفن کر دوں۔ بس میں نے تابوت چھکڑے میں سے نیچے اتارا اور کدال سے زمین کھودنے لگا۔ زمین بھربھری تھی، بڑی جلدی گڑھا بن گیا۔ میں نے تابوت گھسیٹ کر اس کے اندر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال کر قبر بند کی اور چھکڑے پر بیٹھ کر واپس مڑا ہی تھا کہ گھوڑے نے چیخ مار کر اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کھڑی کر لیں۔ میں چھکڑے سے لڑک کر قبروں پر جا گرا۔ گھوڑا چھکڑے سمیت پاگلوں کی طرح بھاگ کر قبرستان سے باہر نکل گیا۔ میں حیران تھا کہ آخر اس گھوڑے کی ایسی کون سی شے قبرستان میں نظر آئی کہ چیخ مار کر بھاگ اٹھا۔ میں نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور پیدل ہی قبرستان کے بڑے دروازے کی طرف چلا۔ ابھی 1-2 قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے کانوں کے بالکل پاس کسی عورت نے مدھم سانس لے کر بڑے درد بھرے انداز میں کہا، میں قبر میں بند ہوں، مجھے باہر نکالو۔ میں آج تک قبرستان میں کبھی نہیں ڈرا، مگر یہ آواز سن کر ایک بار میں بھی کام گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک ایسی مخلوق دکھائی دی جس کا خیال کرتا ہوں تو اس وقت بھی میرا خون رگوں میں برف بن جاتا ہے۔ گورکن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سرائے کا مالک اور دوسرا گاہک دونوں بت بنے دہشت زدہ ہو کر گورکن کی عجیب و غریب ڈراؤنی کہانی سن رہے تھے۔ ماریا بھی اس کہانی میں بڑی دلچسپی لے رہی تھی، مگر ابھی تک اسے اس داستان میں کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دی تھی جس سے اسے کوئی ناگ اور امبر کے سلسلے میں سراغ مل سکتا۔ یہ سراغ اسے آگے چل کر ملنے والا تھا۔ سرائے کے مالک نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے گورکن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا گوریو؟ دوسرا آدمی معلوم ہوتا تھا کہ بولنے کی بھی سکت نہیں رہتی۔ وہ تو گورکن کے ساتھ وہیں قبر کے اوپر بت بن کے کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ گوریو کا قہوہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈے قہوے کا یہ گھونٹ چڑھا کر اپنے سیاہ موٹے کوٹ کی آستین سے ہونٹ پونچھنے لگا۔ دوسرے گاہک کے دہشت والے ٹھنڈے ہونٹوں پر سے گویا اپنے آپ یہ لفظ برف کی ڈلیوں کی طرح باہر گر پڑے۔ گوریو وہ کیا چیز تھی؟ گوریو نے ایک بار پھر سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور کہا، بس کچھ نہ پوچھو کہ وہ کیا مخلوق تھی۔ ایک چڑیل تھی کہ جس کا آدھا جسم زندہ عورت کا اور آدھا جسم مردہ عورت کا تھا۔ آدھے جسم پر گوشت تھا اور آدھے جسم کی سفید ہڈیاں کھڑکھڑا رہی تھیں۔ اس کی کھوپڑی میں ایک آنکھ ہی تھی، دوسری آنکھ میں گہرا سوراخ تھا جس میں سے اس کی باقی آدھی کھوپڑی کا پچھلا حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کالا لبادہ اڑ رکھا تھا اور اس کے جسم پر ایک کالے رنگ کا سانپ رینگ رہا تھا۔ سانپ؟ سرائے کے مالک نے چونک کر کہا۔ ہاں سانپ، گورکن بولا۔ میں نے ایسا گہرے سیاہ رنگ کا چمکدار سانپ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اس زندہ لاش کے سارے جسم پر رینگ کر واپس اس کی گردن میں جا کر جھولنے اور میری طرف اپنی لال لال آنکھیں نکال کر گھورنے اور پھنکارنے لگا۔ سانپ کا ذکر سن کر ماریا بھی چونکی۔ وہ غور سے گورکن کی آپ بیتی سن رہی تھی، مگر اسے یہ آپ بیتی عام سی لگ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی اتنی لمبی زندگی میں اس سے زیادہ ہولناک واقعات اور حادثات دیکھے تھے۔ لیکن جب گورکن نے سانپ کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ سانپ بڑا گہرا سیاہ اور چمکیلا تھا تو ماریا کا ماتھا ٹھنکا۔ اس قسم کے سانپ یورپ میں نہیں ہوا کرتے۔ وہ سانپ ضرور سندھ یا مصر کی وادی کا ہوگا۔ مجھے وہاں چل کر اس سانپ سے ملاقات کرنی چاہیے
हो सकता है वो मुझे नाग के बारे में कुछ बता सके। इतने में सराय के मालिक ने गोरकन की प्याली में गर्म कहवा डालकर कहा, गोरियो फिर क्या हुआ बताओ ना, तुम रुक क्यों जाते हो। गोरकन ने अपने होठों को भेंचकर एक गहरा सांस छोड़ा और सराय के मालिक की तरफ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर इस वक्त वहां तुम होते तो बेहोश होकर ऐसे गिरते कि फिर उस सराय की गद्दी पर बैठना नसीब ना होता। दूसरे गाहक ने जल्दी से कहा, क्या वो चुड़ैल थी। गोरकन ने कहा, मैं नहीं मानता कि वो चुड़ैल थी, क्योंकि मैंने अपनी कब्रिस्तान में गुजारी हुई 50 साल जिंदगी में कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी है। मगर ये तो बताओ कि तुम वहां से कैसे भागे। बस यूं ही उस जिंदा लाश ने अपना जबड़ा खोलकर दोनों बाजू फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने एक चीख मारी और सर पर पांव रखकर ऐसे पीछे को भागा कि हैरान हूं, इतने मोटे जिस्म के साथ मैं 5 सेकंड में कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर किस तरह था। गोरकन की पुरस्कार दास्तान सुनकर गाहक और सराय का मालिक कुछ देर खामोशी से गोरकन को देखते रहे। फिर सराय के मालिक ने आंखें नचाकर सराय के सामने से गुजरती अंधेरी सड़क को देखा। उसके जिस्म पर एक कपकपी सी तारी हो गई। उसने गोरकन और दूसरे गाहक से कहा, मेरा ख्याल है रात ज्यादा गुजर गई है, अब चलना चाहिए। तुम्हारी ड्रावनी आपबीती ने तो नींद उड़ा दी है। अरे गोरियो, कहीं गप तो नहीं मार रहे थे। गोरकन ने उठते कहा, झूठे का मुंह काला, अगर यकीन नहीं आता तो अभी कब्रिस्तान जाकर अपनी आंखों से देख लो। वो जिंदा लाश अब भी किसी इंसान का गोश्त खाने के लिए उन कब्रों के दरमियान फिर रही होगी। शाही कब्रिस्तान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस एक किले तक ही सड़क जाती है, उसके पीछे कब्रिस्तान है। क्या इरादा है। सराय के मालिक ने कानों पर हाथ रखकर कहा, खुदा चुड़ैलों से बचाए बाबा, मैं तो अभी कोठली बंद करके सो जाऊंगा। दूसरे गाहक ने पूछा, तुम्हारा छकड़ा कहाँ है। वो मुझे कब्रिस्तान से बाहर कुछ फासले पर मिल गया था, इस वक्त भी सराय के बाहर दरिया किनारे खड़ा है। मैं तो जरा कहवा पीकर अपने होशोवास ठीक करने आ गया था। अच्छा भाई, अब मैं वापस चलता हूँ। ये कहकर गोरकन उठा और छकड़े की तरफ रवाना हो गया। दूसरा गाहक भी सराय से निकलकर पेरिस के अंधेरी गली कूचों में गुम हो गया। सराय के मालिक ने सराय का दरवाजा बंद कर दिया। मारिया उस वक्त सराय के बाहर खड़ी थी। किले तक वो कई बार आई गई थी। वो शहर से बाहर निकलकर किले की तरफ जाने वाले अंधेरे कच्चे रास्ते पर रवाना हो गई। वो आज से 450 साल पहले के पुराने पेरिस की एक ठंडी यख अंधेरी वीरान रात थी। गली कूचों में रातों को जलने वाले चिराग भी बुझ गए थे। लोग इतने गरीब थे कि खुद चौकीदार उन चिरागों का तेल चुरा कर ले जाते थे। मारिया ऊंची नीची पथरीले फर्श वाली सुनसान गलियों में से गुजरकर शहर के एक टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल आई। दूर से उसे किले के अंदर महल की रोशनी दिखाई दी। उसी किले के दूसरी तरफ वो शाही कब्रिस्तान था जहां मारिया जा रही थी। मारिया एक खाई में से गुजर रही थी। उस खाई के एक तरफ खेत थे और एक तरफ किले की दीवार थी। खाई में झाड़ियों का जंगल उग रहा था। मारिया उन झाड़ियों से ऊपर ऊपर होकर चल रही थी। किले की ऊंची दीवार पर कहीं कहीं मशल रोशन थी और शाही पहरेदार की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। मारिया की सारी तवज्जो उस वक्त शाही कब्रिस्तान की तरफ थी। वो उसे दूर दूर अंधेरी रात में देखने की कोशिश कर रही थी। जब वो किले से दूर हटकर उसके पीछे आ गई तो उसे अंधेरे में फासले पर एक ऊंची दीवार का साया दिखाई दिया। मारिया उस तरफ चल पड़ी। करीब पहुंचकर उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े पुराने कब्रिस्तान का टूटा फूटा ऊंचा दरवाजा था, जिसके कुछ पत्थर और ईंटें एक तरफ से नीचे गिरकर ढेर सा बन गई थी। मारिया समझ गई कि यही वो शाही कब्रिस्तान है जिसका जिक्र गोरकन अपनी आपबीती में कर रहा था। मारिया कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। ऐन उस वक्त बदरू लाश के गर्दन में लिपटे हुए नाग ने बेचैनी से अपनी जुबान बाहर निकालकर फुनकारें मारी। बदरू लाश अपने ताबूत में बंद पड़ी थी। उसकी एक आंख बंद थी। उसके कानों में सांप की फुनकार की आवाज़ पड़ी तो उसने आंख खोलकर सांप को देखा। सांप कुछ बेचैन सा हो रहा था। नाग को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी यादाश्त गुम हो चुकी थी। उसे ना मारिया याद थी ना अंबर, लेकिन फिर भी उसका जिस्म अभी जिंदा था और ये जिस्म 5000 साल से भी ज्यादा अरसे से मारिया और अंबर के साथ साथ रहा था। नाग के जिस्म ने मारिया के कब्रिस्तान में दाखिल होने को महसूस कर लिया था। यही वजह थी कि वो बेचैन हो गया था। उस बेचैनी की वजह खुद नाग को नहीं मालूम थी। बदरू लाश ने सांप को बेकरारी से इधर उधर सर मारते और जुबान निकालते देखा तो वो भी कुछ परेशान सी हो गई। जल्दी से अपने ताबूत में से बाहर निकली और अंधेरी सुरंग में से गुजरकर बड़े तहखाने की तरफ बढ़ी। उसे खतरा था कि कहीं गैबी औरत कब्रिस्तान में दाखिल ना हो गई हो। मकड़ा इंसान भी वापस कब्रिस्तान में नहीं आया था। उसकी वजह सिवाय इसके और क्या हो सकती थी कि गैबी औरत से मुकाबले में वो हलाक हो गया होगा। बदरू भागकर बड़े तहखाने में आई। उसकी निगाह अंबर के लटकते सर पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। अंबर की आंखें सुर्ख हो रही थी। इसका मतलब था कि गैबी औरत कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी है। बदरू लाश भागकर बड़े तहखाने से बाहर निकल गई। वो सीधा गुंबद वाले तहखाने में आ गई। उसने खूनी प्याले में से खून लेकर दीवार पर जोर जोर से छींटे मारे। तीसरे छींटे पर दीवार में से बड़ी खोपड़ी उभर आई। बदरू चिल्लाई, मुकद्दस देवता, गैबी औरत कब्रिस्तान में दाखिल हो गई है। मुकद्दस देवता ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे पहले ही पता चल गया था। बदरू लाश फिक्रमंदी से बोली, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इस सांप को किसी तहखाने में गड्ढा खोद कर नहीं छुपा सकती?
खोपड़ी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे जादू के अमल का हिस्सा है कि सांप तुम्हारी गर्दन से लिपटा रहे और थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हारे जिस्म पर फिरता रहे। बदरू लाश ने चीख कर कहा, मेरे जादू का अमल ख़त्म होने सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं, फिर मैं गैर फानी हो जाऊंगी और ये गैबी औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मुकद्दस खोपड़ी ने कहा, ठीक है, मगर 5 दिन गुजरने अभी बाकी हैं और तुम्हारी दुश्मन गैबी औरत कब्रिस्तान के हाथे में दाखिल हो चुकी है। बहुत जल्द उसे तुम्हारे गले वाले सांप की बू आने लगेगी और बहुत जल्द उस सांप की बू उसे तुम्हारे पास ले आएगी और फिर तुम कुछ ना कर सकोगी और वो तुम्हारे गले से सांप उतार कर ले जाएगी। सांप तुम्हारे गले से उतर गया तो तुम्हारा जादू का अमल खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारा जिस्म गल सड़कर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। बदरू लाश ने दहशतनाक चीख मारकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उस गैबी औरत को कच्चा चबा जाऊंगी। मुकद्दस खोपड़ी की आवाज़ आई, शायद तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। उसके साथ ही खोपड़ी दीवार में गायब हो गई। बदरू लाश गुम्बद वाले मकबरे से निकलकर उन सीढ़ियों के पास आ गई जो बाहर कब्रिस्तान की बारादरी में निकल जाती थी। उसके 99 सीढ़ी का तख्ता हटाकर बदरू लाश ने देखा कि आग बरसाने वाली खोपड़ी ताबूत के ऊपर रखी हुई थी। बदरू लाश ने उसकी तरफ हड्डियों वाले हाथ का इशारा करके कहा, दुश्मन कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है, खबरदार वो इस सीढ़ी पर से जिंदा आगे न जाए। खोपड़ी के मुंह से आग का एक शोला निकलकर ऊपर को उठा। बदरू लाश ने सीढ़ी का तख्ता बंद कर दिया और सीढ़ियाँ चढ़कर बड़ी खामोशी के साथ कब्रिस्तान के ऊपर बारादरी की झाड़ियों में आकर छुप गई। यहाँ उसने 4 जगहों पर मुर्दा ढांचों को पहरे पर लगा कर रखा था। ये वो मुर्दा इंसानी ढांचे थे जो हवा में हल्की सी लहर को भी महसूस कर लेते थे। बदरू लाश ने जबड़ा हिलाकर अपनी खामोश जुबान में उन्हें खबरदार करते हुए कहा, गैबी औरत कब्रिस्तान में आ गई है, क्या तुमने कुछ महसूस किया है? कब्रिस्तान के चारों कोनों से उसे इंसानी ढांचों की खामोश आवाज़ सुनाई दी, नहीं हमारी आका, हमें अभी तक कुछ महसूस नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? लाश ने झिंझिला कर कहा, गैबी औरत कब्रों में फिर रही होगी, देखो वो दरवाजे में तो नहीं है। थोड़ी देर बाद इंसानी ढांचों की खामोश आवाज़ लहरों की शक्ल में बदरू लाश के कानों से टकराई, नहीं हमारी आका, वो हमें कहीं महसूस नहीं हो रही। लेकिन बदरू लाश के गले में लिपटा हुआ सांप बहुत बेचैन हो रहा था। लाश को खतरा पैदा हुआ कि कहीं गैबी औरत इस सांप की बू सूंघकर उसकी तरफ ना आ जाए। चुनाचे वो तेजी से बारादरी की सुरंग से गुजरी और 99 सीढ़ियाँ उतरकर अपनी मुर्दों की दुनिया में चली गई। मारिया सर्द धुंधली रात के अंधेरे में कब्रों पर से गुजरती आगे बढ़ रही थी कि उसे एक जगह से नाक की बू आई। ये वो वक्त था जब बदरू लाश कब्रिस्तान के ज़मीन के अंदर मुर्दों की दुनिया से निकलकर बाहर बारादरी की झाड़ियों में छुपी हुई थी। मारिया नाक की बू की तरफ बढ़ी। जो जो वो कब्रिस्तान में आगे बढ़ रही थी, नाक की बू कम होती जा रही थी और फिर बू गायब हो गई। उस वक्त बदरू लाश सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में जा चुकी थी और उसने बारादरी के ऊपर वाली सुरंग का सुराख बंद कर दिया था। जहाँ नाक की बू खत्म हुई वहाँ मारिया रुक गई। उसने चारों तरफ मुंह करके नाक की बू दोबारा सूंघने की कोशिश की, मगर कब्रिस्तान में सिवाय मुश्क, काफूर और मुर्दों की हड्डियों के फास्फोरस की तेज़ बू के दूसरी कोई बू नहीं आ रही थी। मारिया सोचने लगी कि आखिर नाग की बू कहाँ से आई थी और फिर अचानक कैसे गायब हो गई। उसे यकीन हो गया कि नाग इसी कब्रिस्तान में किसी जगह पर मौजूद है और ज़रूर किसी मुसीबत में फंस चुका है, नहीं तो उससे भी मारिया की बू आ गई होती। अगर वो मुसीबत में ना होता तो ज़रूर बाहर निकलकर उसके पास आ जाता। मारिया को नाग की बू इतनी तेज़ आई थी कि जैसे नाग उससे 50-60 कदमों के फासले पर हो। मारिया कब्रों को गौर से देखने लगी। कई कब्रें फटी हुई थी, उन कब्रों के ऊपर धुंध का बादल छाया हुआ था। मारिया को उस चुड़ैल का इंतजार था जिसके गले में गोरकन के कहने के मुताबिक सांप लटका हुआ था। मारिया का दिल गवाही दे रहा था कि वह सांप नाग के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसे ख्याल आया कि चुड़ैल मारिया को नहीं देख सकती, इसलिए उसके पास खुद नहीं आएगी। मारिया को चाहिए कि खुद चलकर चुड़ैल को तलाश करे। गोरकन की दहशत भरी कहानी झूठी नहीं थी। मारिया सूखी शाखों वाले स्याह दरख्तों के नीचे से गुजरती बारादरी के करीब आ गई। इस किस्म की टूटी फूटी बारादरियाँ मारिया ने मिस्र, यूनान और बगदाद के सैकड़ों साल पुराने कब्रिस्तानों में भी देखी थी। उस बारादरी में भी एक कब्र बनी हुई थी। मारिया बारादरी के चबूतरे में दाखिल हुई तो उन मुर्दों ने मारिया के जिस्म से निकलती रहनों को महसूस कर लिया। ये चारों हड्डियों के ढांचा मुर्दे कब्रिस्तान में बारादरी के आसपास पहरा दे रहे थे। मारिया की लहरें बारादरी से आ रही थी। वो बारादरी की तरफ बढ़े। मारिया चबूतरे में खड़ी कब्र के पत्थरों को हाथ लगाकर देखने लगी। उन पत्थरों पर इब्रानी जुबान में कोई जादू की तहरीर लिखी थी। इतने में मारिया को हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी और उसने चौंक कर झाड़ियों की तरफ देखा। वहाँ 4 इंसानी ढांचे खड़े उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने बाजुओं की हड्डियाँ फैलाए बढ़ रहे थे। सबसे पहला ख्याल जो मारिया के जहन में आया वो ये कि था उन ढांचों ने उसे देख तो नहीं लिया, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी सेध में बढ़ रहे थे। मारिया एक तरफ हट गई, ढांचे भी उस तरफ हट गए। वो मारिया को देख नहीं रहे थे।
बल्कि उसके गैबी जिस्म से निकलने वाली लहरों को महसूस कर रहे थे और उसी हिसाब से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मारिया रुक गई। उसने सोचा कि वो उनसे नाग के बारे में पूछेगी। जब ढांचे मारिया के करीब आ गए तो मारिया ने कहा, क्या तुम मुर्दा हो? अगर मुर्दा नहीं तो क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? इस बार चारों इंसानी ढांचों ने मारिया पर हमला कर दिया। वो बेवकूफ़ थे। मारिया पर हमला करके वो उसे भला क्या नुकसान पहुंचा सकते थे। मारिया ने एक ही वार में 2 मुर्दों की खोपड़ियां गर्दनों से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी। बाकी 2 ढांचे खड़खड़ाते हुए वहां से भाग गए। ये दोनों ढांचे बारादरी की दीवार में जाकर गुम हो गए थे। मारिया उस दीवार की तरफ बढ़ी जहां उसे एक जगह से पत्थरों का प्लास्टर उखड़ा हुआ नजर आया। उसने जोर से हाथ मारा, दीवार गिर पड़ी और मारिया को एक तारीक सुरंग नजर आई जिसकी सीढ़ियां नीचे जाती थी। उसके साथ ही उसे नाग की हल्की हल्की बू भी आने लगी। इस पर वो खुश हुई क्योंकि उसे नाग से मिलने की उम्मीद हो गई थी। मारिया सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियां काफ़ी लंबी थीं। ये वही सीढ़ियां थी जिसकी 99 सीढ़ी पर पहुंचकर इंसान का आधा धड़ गायब हो जाता था और अब जिसके तख्ते के नीचे बदरू लाश ने आग बरसाने वाली दोज़खी खोपड़ी छुपा रखी थी। मारिया ने देखा कि दीवारों में जगह जगह इंसानी खोपड़ियां लटक रही हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रही थी। जब वो 99 सीढ़ी पर पहुंची तो उसने अपना पाँव तख्ते पर रखते रखते ऊपर उठा लिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उस तख्ते के नीचे कोई पुरस्कार चीज़ मौजूद है। मारिया ने तख्ते को पकड़ कर एक तरफ खींच दिया। तख्ते के अलग होते ही इंसानी खोपड़ी में से आग का जबरदस्त शोला बुलंद हुआ और मारिया सर से लेकर पांव तक उसकी लपेट में आ गई। लेकिन आग उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि वो खुद आग के साथ आग बन गई थी। उसने झुककर ताबूत के ऊपर रखी आग बरसाती खोपड़ी को उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। खोपड़ी में से एक भयानक चीख बुलंद हुई और आग एकदम से बुझ गई। खोपड़ी के टुकड़े सीढ़ियों में बिखर गए। मारिया ने सीढ़ी का तख्ता फिर से जमाया और सुरंग के उस रास्ते पर चल पड़ी जिसकी दीवारों में पत्थरों की जगह इंसानी खोपड़ियां लगी हुई थी। उसे नाग के साथ साथ अब अंबर की भी हल्की हल्की खुशबू आने लगी थी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। तो क्या अंबर भी इसी गार में था? वो एक तहखाने से गुजरकर एक दीवार के पास आकर रुक गई। उस दीवार के दूसरी जानिब से अंबर की बड़ी तेज खुशबू आ रही थी। उस दीवार के दूसरी जानिब बड़े तहखाने का दालान था जहां अंबर का सर हवा में लटका हुआ था और दीवार के साथ खुले ताबूतों में इस्लामी मुजाहिदा जुबैदा और उसके खाविंद अब्दुल्ला की लाशें यूं कफन में लिपटी रखी थी कि उनके जिस्म गायब थे और सिर्फ सर कफन से बाहर नजर आ रहे थे। मारिया दीवार को तोड़ने लगी। उस वक्त बदरू लाश मुर्दों के शहर के सबसे निचले तहखाने में बेचैनी से टहल रही थी। उसकी गर्दन से लिपटा हुआ नाग उससे ज्यादा बेचैन था और बार बार अपनी जुबान निकाल रहा था। उसका जिस्म मारिया की खुशबू को महसूस कर रहा था मगर उसे मारिया याद नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी यादाश्त गुम कर दी गई थी। मारिया ने दीवार तोड़ दी। वो बड़े तहखाने में दाखिल हो गई। क्या देखती है कि सामने चबूतरे पर अंबर का सर फर्श से 1 गज ऊपर हवा में लटका हुआ है और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। मारिया भागकर उसके पास गई। उसने उसके जिस्म को हाथ लगाकर देखा। अंबर का निचला धड़ गायब जरूर था मगर अपनी जगह पर मौजूद था। मारिया ने कहा, अंबर भाई मैं आ गई हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये किसने जादू किया है? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तुम बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दो अंबर। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अंबर मारिया की आवाज़ सुन रहा था मगर वो जवाब नहीं दे सकता था, बोल नहीं सकता था, ना अपनी गर्दन हिला सकता था। वो मुस्कुराया। उसने बोलना चाहा मगर उसकी जुबान अपनी जगह से जरा भी ना हिली, ना उसकी आवाज़ निकल सकी। मारिया परेशान होकर स्याह दीवारों के साथ लगे ताबूतों के पास गई। उन ताबूतों में उसने अब्दुल्ला और जुबैदा के सर पड़े हुए देखे। उनके भी धड़ गायब थे मगर हाथ लगाने से महसूस होते थे। मारिया समझ गई कि यहाँ उसी जिंदा लाश ने जादू कर रखा है जिसका जिक्र गोरकन ने सराय में किया था और जिसकी गर्दन में नाग सांप बनकर लटक रहा है और उसे इस जिंदा लाश को तलाश करना होगा। ये सोचकर मारिया तहखाने से निकल आई। वो सुरंग के अंधेरे में चलती एक दरवाजे से बाहर आई तो क्या देखती है कि खुली जगह है। जगह जगह मकबरों जैसे शिकस्ता गुंबदों वाले मकान हैं। हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ है। दरख्तों की शाहों के साथ खोपड़ियां लटकी हुई हैं और मकानों के ऊपर आसमान के बजाय स्याह बादल फैले हैं। उसने 2 मुर्दे देखे जो अपनी हड्डियों वाले जिस्मों पर सफ़ेद कफन डाले बड़ी तेजी से एक मकान के दरवाजे से दूसरे मकान की तारीक ड्योढ़ी में गायब हो गए। मारिया को ख्याल आया कि यही वो मुर्दों का शहर तो नहीं कि जिसके बारे में गोरकन ने बताया था। मारिया इस मुर्दा शहर में से गुजरने लगी। उसने देखा कि सड़क पर पत्थरों की जगह मुर्दों की खोपड़ियां लगी हुई थी। दरख्तों पर भी मुर्दों की हड्डियां, हाथ पैरों के पिंजर और खोपड़ियां लटक रही थी। उसे एक कब्र जैसे मकान के बाहर खोपड़ी के प्याले में चिराग जलता नजर आया। वो उस मकान की तरफ बढ़ी। नाक की खुशबू एक बार फिर हल्की हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि बदरू लाश उसी मुर्दा शहर के नीचे, बहुत नीचे एक खुफिया तहखाने में नाग को अपनी गर्दन में लपेटे छुपी हुई थी मगर वो अपनी आने वाली मौत से बेखबर नहीं थी। वो खूब जानती थी कि अगर गैबी औरत उसका नाग ले जाने में कामयाब हो गई तो बदरू लाश 2 दिन के बाद खड़े खड़े गल सड़कर खाक में खाक होकर मिल जाएगी। बदरू लाश सजदे में गिरी हुई थी और मुर्दा शहर की सबसे बड़ी जादूगरनी की रूह के आगे
आहो जारी कर रही थी कि वो उसकी मदद करे और उसे आने वाली इबरतनाक मौत से बचाए। वो जादूगरनी की रूह के आगे गिड़गिड़ाने में इतनी गुम हो चुकी थी कि उसे नाग के जिस्म पर से उतरने की खबर न हुई। नाग को मारिया का एहसास नहीं था, उसे कुछ खबर नहीं थी कि मारिया मुर्दों के शहर में पहुंच चुकी है और उसकी तलाश में चली आ रही है। वो अंबर से भी बेखबर था, लेकिन एक बेचैनी थी जो उसे बदरू लाश से नीचे ले आई। जादूगरनी की रूह तक बदरू लाश की आखिरी फरियाद पहुंच गई थी और उसने अपने सबसे बड़े जादू का मंत्र पढ़कर मुर्दों के शहर में उस मकान पर फूंक मारी जिसके दरवाजे पर इंसानी खोपड़ी में चिराग जल रहा था। उसके बाद उसकी फूंक से चिराग बुझ गया। मारिया ठिठक कर वहीं रुक गई। ये चिराग अपने आप कैसे बुझ गया? फिर भी मारिया ना घबराई, क्योंकि वो जानती थी कि ये मुर्दों का शहर है और यहाँ रूहें उसके खिलाफ मैदान में आ चुकी हैं और उसे नाग तक पहुंचने के लिए रोक रही हैं। मारिया मकान की तरफ बढ़ी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे उस मुर्दा मकान की तरफ नहीं जाना चाहिए था, मगर उसके दिमाग पर जादूगरनी के सबसे बड़े जादू का असर हो चुका था और उसे कोई खबर नहीं थी। वो मकान की तारीक ड्योढ़ी में दाखिल हो गई। अंधेरे में पहले तो उसे कुछ नजर न आया। उसने सांस अंदर को खींचकर नाग की बू सूंघने की कोशिश की। नाग की बू बहुत हल्की थी। अंधेरे में उसने आगे कदम बढ़ाया। उसे हल्की नीली की रोशनी में एक पत्थर का ताबूत दिखाई दिया जो दरमियान में रखा था। उसके ऊपर नामालूम किधर से हल्की रोशनी पड़ रही थी। मारिया संदूक के करीब आई। उसने झुककर संदूक को गौर से देखा। संदूक के ऊपर एक औरत की शक्ल बनी हुई थी जिसकी आंखें खुली थी और सुर्ख जुबान बाहर निकली हुई थी। सर के बाल ऊपर को कांटों की तरह उठे हुए थे। नीचे किसी नामालूम जुबान में जादू की कोई तहरीर लिखी थी। मारिया ये तहरीर ना समझ सकी। उसने ताबूत का ढकना उठाया। ये उसकी दूसरी गलती थी, मगर होनी होकर रहती है। मारिया ने देखा कि ताबूत के अंदर से सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। मारिया ने सांस अंदर को खींचा। उसे ताबूत के अंदर से नाग की बड़ी तेज बू महसूस हुई। मारिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। नाग जरूर सीढ़ियों के अंदर था। उसे कोई खबर नहीं थी कि यह सारा जादूगरनी के जादू का करिश्मा है और वही जादू के जरिए नाग की बू को वहां लेकर आई थी। मारिया ताबूत के अंदर दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियों में बाहर की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने अभी चौथी सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि एक धमाके की आवाज के साथ ताबूत का ढकना ताबूत पर गिरा और ताबूत बंद हो गया। मारिया ने ऊपर देखा। ताबूत के ऊपर ढकने की छत सी पड़ गई थी और सीढ़ियों में अंधेरा छा गया था। उसके साथ ही नाग की खुशबू भी गायब हो गई थी। वो जल्दी से 2-4 सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। छठी सीढ़ी के बाद तहखाने के आगे दीवार आ गई। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगी तो किसी गैबी दीवार से टकराकर पीछे को हट आई। उसने घबराकर हाथ आगे को किए और नजर ना आने वाली दीवार को छुआ। यह खुरदरी चट्टान की दीवार थी जो मारिया को दिखाई नहीं दे रही थी। यह जादूगरनी की जादू की दीवार थी। यही जादूगरनी की रूह का सबसे बड़ा जादू था जो उसने बदरू लाश को बचाने के लिए आजमाया था और वो कामयाब हो गया था। मारिया इस कब्रनुमा तहखाने में बंद होकर रह गई। उसने कई बार इस दीवार में से गुजरने की कोशिश की जो उसके चारों तरफ गोल शक्ल में खड़ी हो चुकी थी और जिसे उस गुंबद की शक्ल में अपने घेरे में ले लिया था। इससे पहले भी एक बार अफ्रीका के जंगलों से गुजरते हुए एक जादूगर ने उसे शीशे की चारदीवारी में कैद किया था। यह दूसरा मौका था कि मारिया कैद में पड़ चुकी थी और अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। अब ना उसे अंबर की खुशबू आ रही थी, ना नाग की बू आ रही थी और ना उसे बाहर की कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि वो कब्र की गहराइयों में खामोशी और सन्नाटे के किसी ताबूत में बंद कर दी गई है जहां से अब वो शायद कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। बदरू लाश ने एकदम से सर ऊपर उठाया। उसकी आंख का डेला खुशी से घूम रहा था। उसे जादूगरनी की रूह की आवाज़ ये कहती सुनाई दी, गैबी औरत को मुर्दों के शहर से पुराने ताबूत में बंद कर दिया गया है। बदरू लाश की यह सबसे बड़ी फतह थी। वो आखिर अपनी जान बचाने और अपने आप को क़यामत तक के लिए जिंदा रखने में कामयाब हो गई थी। अब 2 दिन बाद वो अमर हो जाएगी, लफानी हो जाएगी। उसे मौत कभी नहीं आएगी। उसके आधे जिस्म की हड्डियों पर गोश्त वापस आ जाएगा। वो फिर से खूबसूरत सेहतमंद जवान औरत बन जाएगी और उसे कभी मौत नहीं आएगी। वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो हमेशा जवान, खूबसूरत और जिंदा रहेगी। बदरू लाश खुशी का एक नारा लगाकर उठी और उसने अपनी गर्दन में हाथ डाला कि सांप को चूम ले, मगर उसका हाथ अपनी गर्दन की हड्डी से टकरा कर रह गया। वो कांप उठी। उसने अपनी गर्दन और जिस्म को देखा। सांप वहां नहीं था। बदरू लाश के पैरों तले की जमीन निकल गई। नाग कहाँ चला गया? अगर नाग गुम हो गया तो उसकी उम्मीदों और कामयाबी का सारा महल गिरकर पाश पाश हो जाएगा। वो तहखाने से निकलकर बाहर को भागी। नाग कहीं नहीं था। नाग उस वक्त तहखाने से निकलकर मुर्दों के शहर की एक तारीक गली में से गुजर रहा था। उसका रुख उस गुंबद वाले तहखाने की तरफ था जिसके अंदर खून का प्याला पड़ा था और जिसमें दूसरी बार गिरने से नाग की यादाश्त वापस आ सकती थी। नाग अंधेरी गली में रेंगता हुआ चला जा रहा था। उसे ना अंबर याद था, ना मारिया याद थी। बस अपने आप ही किसी गैबी ख्याल की मदद से आगे बढ़ रहा था। ये मुर्दों के शहर की गली थी जो कब्रिस्तान के नीचे आबाद था। बदरू लाश नाग की तलाश में पागलों की तरह पीछे भागी आ रही थी। नाग के गुम हो जाने से बदरू लाश को मौत से कोई नहीं बचा सकता था। उसका आधा जिस्म जिंदा और आधा मुर्दा था। आधे जिस्म पर गोश्त था और अब बाकी आधे जिस्म की हड्डियां नजर आ रही थी। एक आंख जिंदा थी और दूसरी आंख की जगह खोपड़ी में सुराख बना हुआ था। वो स्याह लंबा चोगा ओढ़े उसी गली की तरफ आ रही थी जहां नाग दीवार पर रेंगते हुए अब कोठली के दहलीज पर आ गया था।
जिसके अंदर चबूतरे पर खून से भरा हुआ प्याला पड़ा था। अगर नाग उस प्याले के खून में एक बार डुबकी लगा ले तो उसकी याददाश्त और ताकत वापस आ सकती थी। वो कोठली के अंदर दाखिल हो गया। कोठली में अंधेरा था। नाग चबूतरे पर चढ़ गया। सामने खून का भरा हुआ प्याला पड़ा था। नाग प्याले के अंदर उतर गया। उसने खून में एक डुबकी लगाई और जब प्याले से बाहर आया तो उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। अब उसे मारिया और अंबर की बू आने लगी। उसे याद आया कि वो अंबर की तलाश में उस कब्रिस्तान की दुनिया में आया है और अंबर के सर को उसने तहखाने में लटकते देखा था। उसे मुसलमान मुजाहिद अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा भी याद आ गई, जिनकी लाशें उसी तहखाने में एक ताबूत में पड़ी थी। वो कोठली से निकलकर बाहर आया तो उसने अपने सामने बदरू लाश को खड़े देखा। ये बदरू लाश ने उसको पकड़ने के लिए अपने हड्डियों वाला हाथ बढ़ाया ही था कि नाग ने फुनकार मारी और छोटी सी काली चिड़िया की शक्ल बदलकर वहां से उड़कर बाहर आ गया। बदरू लाश घबराहट में उसके पीछे भागी, मगर नाग वहां से निकलकर बड़े हाल कमरे में पहुंच चुका था। उसने अंबर के लटकते सर को देखा। अंबर ने भी नाग को चिड़िया के रूप में पहचान लिया था, मगर वो अपनी जगह पर पत्थर बना हुआ था, सिर्फ आंखें हिला सकता था। वो बदरू लाश के जादू के असर में था। नाग उड़ता हुआ हाल कमरे में चक्कर लगाने लगा। बदरू लाश उसका पीछा कर रही थी। जब तक बदरू लाश जिंदा है उसके जादू का असर दूर नहीं हो सकता था। नाग ने महानागिनी देवी को बुलाने का फैसला कर लिया। महानागिनी देवी को हिमालय के गार में 10,000 साल से रह रही थी और उससे बड़ी नागिन जादूगरनी जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर और कोई नहीं थी। नाग ने महानागिनी देवी को याद किया और खुद सांप की शक्ल में चबूतरे पर आकर कुंडली मारकर बैठ गया, क्योंकि महानागिनी देवी बहुत बड़ी जादूगरनी नागिन थी और नाग उसकी बेहद इज्जत करता था। इतने में महानागिनी देवी उसके सामने जाहिर हो गई। उसकी शक्ल एक अजदहा की सी थी और सर पर बालों की जगह बेशुमार सांप लटक रहे थे। उसके 6 हाथ और 6 पांव थे और सारे हाथों में उसने सुर्ख कांटेदार सांप पकड़े हुए थे। नाग ने अदब से महानागिनी को सलाम किया और कहा, महानागिनी देवी, मैं और मेरे दोस्त अंबर मारिया सख्त मुश्किल में हैं। एक बदरू लाश के खतरनाक जादू ने उन्हें जकड़ रखा है, हमारी मदद कर। महानागिनी देवी की लाल जुबान 3 बार बाहर निकली और उसने कहा, दुनिया की कोई जादूगरनी मेरे जादू का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बदरू लाश को अभी उसकी गुस्ताखी का मजा चखाती हूँ। इतने में बदरू लाश भी नाग को तलाश करती वहां पहुंच गई। उसने महानागिनी देवी को देखा तो एक चीख मारकर उसकी तरफ बढ़ी। महानागिनी ने अपने हाथ का एक सुर्ख कांटेदार सांप उसकी तरफ फेंका। सांप हवा में शोले की तरह उड़ता हुआ बदरू लाश की खोपड़ी के साथ चिमट गया और उसकी खोपड़ी में अपने दांत गाड़कर उसे तोड़ दिया। बदरू लाश के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ी। महानागिनी ने अपने हाथों के दूसरे सांप भी उस पर छोड़ दिए। लाल सांपों ने देखते देखते बदरू लाश के जिस्म का सारा गोश्त चट कर लिया। अब फर्श पर हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। महानागिनी ने आगे बढ़कर ढांचे पर अपना पांव रख दिया। एक बिजली के कड़ाके की आवाज और बदरू लाश का ढांचा जलकर सुरमा बन गया। उसके साथ ही सारे सुर्ख सांप महानागिनी के हाथों में वापस आ गए। उसने नाग की तरफ देखकर कहा, मेरे बच्चे, इस कब्रिस्तान पर बदरू लाश का जादू टूट चुका है। ये कहकर महानागिनी देवी गायब हो गई और उसके साथ ही अंबर भी इंसानी शक्ल में वापस आ गया और ताबूतों में से अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा भी कलमा पढ़ते हुए बाहर निकल आए। वो एक दूसरे को खुश होकर मिले। अंबर ने कहा, मारिया भी यहाँ आई हुई है, आओ उसे तलाश करते हैं। नाग ने कहा, मैंने भी उसकी बू महसूस की थी। इतने में करीबी से मारिया की आवाज़ आई, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। अंबर नाग तो खुशी से निहाल हो गए, लेकिन अब्दुल्ला और जुबैदा हैरान होकर उनका मुंह तकने लगे कि ये किस मारिया से बातें कर रहे हैं और वो दिखाई क्यों नहीं दे रही। अब नाग और अंबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुशी के जोश में भूल ही गए थे कि अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा को मारिया के बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये दोनों अलजायर की जंग आज़ादी के मुजाहिद सवालिया निशान बनकर अंबर नाग को तक रहे थे। मारिया भी करीबी खड़ी उन दोनों को देख रही थी। जुबैदा ने कहा, ये मारिया कौन है? ये उसकी आवाज़ कहाँ से आई थी? नाग ने कहा, असल में ये एक जादूगरनी है जो हमारी दोस्त है, जो कभी कभी हमें मिलने आ जाती है। वो नज़र नहीं आती, अभी आई थी, अब वापस चली गई है। मारिया को बड़ा गुस्सा आया। उसने जोर से नाग का कान पकड़कर खींचा। नाग कान पकड़कर एक तरफ झुक गया। माफ़ कर दो मारिया जादूगरनी। मारिया ने नाग की पीठ पर मुक्का मारकर कहा, जादूगरनी होगी तुम्हारी नानी, तुम्हारी खाला, तुम्हारी चाची। अंबर और नाग कहका लगाकर हंस पड़े। अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा भी हंसने लगे। अब्दुल्ला ने कहा, जादूगरनी से आपका बड़ा मजाक मालूम होता है। हाँ, कुछ ज्यादा ही मजाक है। नाग ने अपना कान सहलाते हुए कहा, चलो अब इस जादू नगरी से निकल चलें। अंबर ने कहा और वो हाल कमरे से निकलकर 99 सीढ़ी में आ गए। ये सीढ़ियाँ टूट फूट चुकी थी। बदरू लाश की मौत के बाद यहाँ का तिलिस्म भी खत्म हो चुका था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर कब्रिस्तान में आ गए। अब कब्रिस्तान में धुंध का बादल भी नहीं था और दिन की रोशनी फैली हुई थी। दरख्त भी जो पहले सूखे और स्याह थे अब सरसब्ज हो गए थे। कब्रें जो पहले खुली थी अब बंद हो चुकी थी और कब्रों के अंदर मुर्दों को सुकून सा आ गया था। ये सब के सब कब्रिस्तान के दरवाजे के पास आकर एक तरफ रुक गए। अब्दुल्ला ने कहा, फ्रांस की शाही फौज के सिपाही मेरी और मेरी बीवी जुबैदा की तलाश में होंगे। हमें यहाँ से निकलकर अब कहाँ जाना चाहिए? नाग ने कहा, मेरी राय में तुम्हें किसी तरह फ्रांस से फरार होकर अपने मुल्क अलजायर वापस चले जाना चाहिए। यहाँ तुम्हारे लिए हर तरफ खतरा ही खतरा है, क्योंकि हम तो इस मुल्क से निकलकर आगे चले जाएंगे। अंबर ने कहा,
मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों यहाँ से किस तरह फरार हों। चारों तरफ फ्रांस के सिपाही इनकी तलाश में बिखरे हुए हैं। नाग ने कहा, यह काम मैं किए देता हूँ। मैं इन्हें अपने साथ लेकर किसी बहरी जहाज में सवार करा दूंगा जो इनके मुल्क को जा रहा हो। अंबर ने कहा, तजवीज़ अच्छी है। क्यों अब्दुल्ला भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब्दुल्ला ने कहा, मैं तैयार हूँ। जुबैदा ने पूछा, लेकिन अंबर भाई, नाग हम दोनों की हिफाजत कर सकेगा? अंबर ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि नाग क्या क्या कुछ कर सकता है? वो तो मैं जानती हूँ, फिर भी किसी वक्त ख्याल आता है कि कहीं हमारी वजह से नाग भाई भी किसी मुश्किल में ना फंस जाए। नाग ने कहा, तुम इस बात की फिक्र ना करो बहन, तुम दोनों मुसलमानों की जंगे आज़ादी लड़ रहे हो। तुम्हारी खातिर अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो परवाह नहीं, वैसे ऐसा होगा नहीं। आखिर यही तय हुआ कि नाग इन दोनों मियाँ बीवी को लेकर फ्रांस के जनूब की तरफ मार्सेल्स की बंदरगाह पर जाए और वहां से उन्हें किसी तरह भेस बदलवाकर अलजायर जाने वाले जहाज पर सवार करवाकर वापस पेरिस आ जाए। अंबर ने कहा, हम पेरिस की नोत्रे डैम सराय में तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब तक तुम नहीं आयोगे हम उसी सराय में रहेंगे। ठीक है, नाग ने कहा। सबसे पहले उन्हें अपने हुलिये बदलने होंगे। उसी कब्रिस्तान में अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा ने अपने हुलिये बदल लिए। वो दोनों सपेरा और सपेरन बन गए थे। जुबैदा ने सपेरनों की तरह अपने बाल खोलकर शानों पर बिखरा लिए थे। अब्दुल्ला ने भी लंबा सपेरों वाला कुर्ता पहन लिया। उसका चोगा पहले उसके पास मौजूद था। नाग ने कहा, सांप जितने चाहे मैं ला देता हूँ। नाग ने उसी वक्त आंखें बंद करके सांपों को आने का हुक्म दिया। दूसरी लम्हे एक गोल टोकरी में सांप वहां गए। नाग ने टोकरी अपने कंधे पर रख ली और कहा, अब सिर्फ एक बीन की कमी है, वो हम बाजार से खरीद लेंगे। अच्छा अंबर और मारिया बहन, खुदा हाफिज। अब्दुल्ला ने कहा, यह तुमने फिर मारिया का नाम लिया? क्या वो जादूगरनी अभी तक तुम्हारे साथ है? अंबर ने कहा, हाँ तुम ऐसा ही समझ लो। और वो अपनी अपनी राह पर चल पड़े। अंबर और मारिया पेरिस शहर की नोत्रे डैम की सराय की तरफ और नाग दोनों मियाँ बीवी को लेकर उस सड़क पर रवाना हो गया जो शहर के जनूब को जाती थी। उस वक्त वो तीनों स्पेन के खाना बदोश सपेरे मालूम होते थे, जो लोगों को सांप का तमाशा दिखाकर खुश करते हैं और जो कोई दे दे ले लेते हैं। उन दिनों फ्रांस का इनकलाब आने वाला था। इनकलाब का तूफान उठने ही वाला था। ये वही इनकलाब है जिसका जिक्र तारीख की किताबों में हम भी पढ़ते हैं और जिसमें लाखों इंसान कत्ल हो गए थे। पेरिस शहर के चौक में गला काटने वाली मशीन लगा दी गई थी। लोगों को छकड़ों में भर भर कर चौक में लाया जाता था। उनकी गर्दनें मशीन के अंदर डाली जाती और फिर ऊपर से लोहे का तेज धार वाला ब्लेड जोर से गिरता और बदनसीब इंसान की गर्दन कट कर टोकरे में गिर पड़ती। इसी मौत की मशीन में फ्रांस की शहजादियों और मलका की गर्दनें भी काटी गई थी। मारिया और अंबर नोत्रे डैम की सराय में जाकर बैठ गए और नाग की वापसी का इंतजार करने लगे। उधर नाग दोनों मुसलमान मुजाहिद मियाँ बीवी को खाना बदोश सपेरों के भेस में फ्रांस के साहिली शहर मार्सेल्स में पहुंच गया। यहाँ से उन्होंने एक समुद्री जहाज में सवार होकर अपने वतन अलजायर की तरफ कूच करना था। ये बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि उस शहर में भी सिपाही उन दोनों की तलाश में जगह जगह छापे मार रहे थे। बंदरगाह पर सख्त पहरा था। हर मुसाफिर की तलाशी ली जाती, उससे पूछगिछ की जाती। जिन सिपाहियों ने अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा को देखा हुआ था उन्हें खास तौर पर बंदरगाह पर लगा दिया गया था ताकि उन्हें पहचान कर गिरफ्तार कर लें। अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा को ये सारी बातें मालूम थी। वो भी चौकस हो गए थे। अगरचे उन्होंने भेस बदला हुआ था, फिर भी खतरा था कि सिपाही उन्हें गिरफ्तार न कर लें। बंदरगाह के गवर्नर ने हुक्म दे रखा था कि जहां कहीं अब्दुल्ला और उसकी बीवी दिखाई दें उन्हें फौरन पकड़ लिया जाए और अगर वो भागे तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जो मुसाफिर समुद्री जहाज पर सवार होते उनकी हर तरह से पड़ताल की जाती, उनके कागजात देखे जाते, उन्हें उन सिपाहियों के आगे पेश किया जाता जो जुबैदा और अब्दुल्ला की सूरत पहचानते थे। ये एक बड़ी मुसीबत थी। नाग के दिमाग में अभी तक कोई तरकीब ना आई थी जिससे वो अब्दुल्ला और जुबैदा को लेकर जहाज पर सवार हो सके। अगरचे उन्होंने भेस बदला हुआ था मगर वो साफ पहचाने जा सकते थे। नाग शहर के एक बाग में दरख्तों के नीचे डेरा लगा लिया था। अब्दुल्ला और उसकी बीवी जुबैदा बाहर नहीं निकलते थे। अब्दुल्ला ने नाग को बताया था कि मार्सेल्स शहर में उनके कुछ मुजाहिद सिपाही छुपकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनसे मिलकर वहां से फरार होने का मंसूबा बन सकता है। नाग दिन भर उनकी तलाश में फिरता रहता था मगर उसे अभी तक कोई खोज नहीं मिला था। एक रोज अब्दुल्ला ने नाग से कहा, नाग भाई हम यहाँ अंदर बैठे बैठे तंग आ गए हैं, जी चाहता है आज शहर से बाहर चला फिरा जाए। जुबैदा ने कहा, हाँ नाग भाई जरा शहर चलकर देखते हैं, हो सकता है हमें कोई अपना मुजाहिद भाई किसी भेस में दिखाई दे जाए, हम तो उसे पहचान लेंगे। नाग ने कहा, तुम्हें बड़ा होशियार रहना होगा, सिपाही जगह जगह फिर रहे हैं। कोई बात नहीं नाग, हमने भेस बदले हुए हैं और फिर हम शहर से बाहर फिरेंगे। नाग ने कहा, हम अपनी सांपों की पटारी साथ ले चलते हैं ताकि यही मालूम हो कि हम सपेरे हैं। नाग ने सांपों की पटारी उठाई और वो तीनों शहर किनारे वाले बाग के खेमे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। बाजारों में रौनक थी। सिपाही हथियार लिए आम फिर रहे थे। वो एक एक आदमी को जो करीब से गुजरता घूर कर देखते। साफ लगता था कि वो अब्दुल्ला और जुबैदा की तलाश में हैं, फ्रांस के किले से फरार हुए हैं। ये तीनों एक चौक से गुजरने लगे तो सामने से घोड़े पर सवार एक कैप्टन आ गया। उसके साथ सिपाहियों का एक दस्ता था। बदकिस्मती से उस फ्रांसीसी कैप्टन ने अब्दुल्ला और जुबैदा को देखा हुआ था। अब जो उसने दो खाना बदोशों को देखा तो उसका माथा ठनका। उसे महसूस हुआ कि इनकी शक्लों को उसने पहले भी कहीं देखा है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया। सिपाहियों ने नाग और अब्दुल्ला को घेरे में ले लिया। नाग ने पूछा, क्यों क्या
नाग ने पूछा, क्यों, क्या बात है जनाब? हम तो गरीब खाना बदोश सपेरे हैं, हमें किस लिए पकड़ा जा रहा है? इतने में कैप्टन घोड़ा बढ़ाकर उसके पास आ गया। करीब आकर कैप्टन ने अब्दुल्ला और जुबैदा को सपेरों के भेस में भी पहचान लिया। उसने तलवार निकालकर लहराई और हुक्म दिया, इन तीनों को गिरफ्तार कर लो। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी भी जारी है। क्या नाग, अब्दुल्ला, जुबैदा कैद से आज़ाद हो सके? क्या नाग अंबर मारिया की दोबारा पेरिस में मुलाकात हो सकी? वो औरत कौन थी जो सर कटने के खौफ से अंबर और मारिया से मदद चाहती थी? क्या वो दोनों उसकी मदद कर सके? वो क्या रास्ता कि अंबर फांसी की कोठरी तक जा पहुंचा? ये सब हालात जानने के लिए आप इसी कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, जिसका नाम है अंबर फांसी की कोठरी में। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।